Hello student, let us begin with algebra 1 for MSc students. सब तो पहला ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਐਲਜਬਰੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ G0 G1 ਅਪ ਟੂ G ਆਫ ਅ ਗਰੁੱਪ G। जी अपने को कोई ग्रुप है, ये G0 G1 अप टू G म्यू ये की है सारे के सारे सब ग्रुप्स ने। आप एक सीरीज़ लिख रहे हैं, सीरीज़ की है E इज इक्वल टू G0 G। सब तो पहला जो सब ग्रुप है E विच इज इक्वल टू G0। G0 कि कंटेन्ड है G1 च, G1 का G2 च अप टू G म्यू। G म्यू कि इक्वल है G के बराबर। एक आप सीरीज़ लिखी है, इसनों आप सब नॉर्मल सीरीज़ कदों कवांगे if each gi minus 1 is a normal subgroup of gi for all I। कैन इसका मतलब है कि G0 मतलब E should be a normal subgroup of G। ये अपन पता E is always a normal subgroup of G, singleton set E। G1 is a normal subgroup of G, G2 should be a normal subgroup of G। ये सारे दे सारे जेडे सबग्रुप्स ने G दे ये नॉर्मल सबग्रुप होने चाहिए आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ G0 G1 ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, G1 G2 ਦਾ, G2 G3 ਦਾ, G μ -1 G μ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਬਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਸ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? G/H ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ H ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? Gi-1 Gi ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ। दैट मीनस अपने को फैक्टर ग्रुप की आ गया Gi ओवर Gi-1। इन्हों आप सब नॉर्मल सीरीज़ के की कवांगे? फैक्टर ग्रुप्स कवांगे। मतलब कि अपने को की आ गया G1 जेड़ा G1 ओवर G0 ये भी फैक्टर ग्रुप बन गया, G2 ओवर G1 भी फैक्टर ग्रुप बन गया, G3 ओवर G2 भी की बन गए फैक्टर ग्रुप्स। इस तरह आप सारे के सारे फैक्टर ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर if each gi is a normal subgroup of G itself, जे सारे दे सारे gi's जेडे सारे दे सारे सबग्रुप्स आ जे G दे नॉर्मल सबग्रुप हो जाते ते then इस सीरीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ Gi -1 Gi ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਗਰੁੱਪ G ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਬਗਰੁੱਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ G ਗਰੁੱਪ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ G0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ G0 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ G ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ? Gi ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, Gi ले लो, Gj ले लो, जो मर्जी इन्हू सपोज कर सकते हैं बिकॉज G इज़ एनी ग्रुप। हाँ जी, ई आइडेंटिटी जो सिंगलटन सैट आ ये हमेशा ही ग्रुप का की होंगे? नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। दैट मीनस ई सबसैट ऑफ G ये अपने को नॉर्मल सीरीज़ बन गई। दिस इज़ ट्रिवली ट्रू, ये हमेशा अपने को ट्रिवली नॉर्मल सीरीज़ होएगी ही होएगी। ये फर्स्ट एग्जाम्पल ਇਹੋ जी है जे एग्जाम च भी पूछते हैं कि नॉर्मल सीरीज़ की है वो एग्जाम्पल दो तो दैन तुम एग्जाम्पल दे सकते हो बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ ऑफ ए ग्रुप। हाँ जी, सैकेंड जे आप ले लेने S3 ले लेने S3 की है कोई परमुटेशन है। परमुटेशन आप BSc च करके आए हैं। परमुटेशन ग्रुप है दैट इज़ ए सिमेट्रिक ग्रुप। S3 की हो गया? परमुटेशन सिमेट्रिक ग्रुप हो गया ऑफ डिग्री 3 का। दैन आइडेंटिटी ये आएगी क्योंकि अपन पता कोई भी ग्रुप हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मस्ट आ। I इज ए सबसेट ऑफ A3 ले लेने A3 की आ अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप की होंगे? सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। दैट मीनस I आइडेंटिटी A3 का सबसेट आ, A3 S3 का सबसेट आ। ये की आ? नॉर्मल सीरीज़ आ बिकॉज आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3। ये आप प्रूफ किया होया एंड A3 इज़ ऑल्सो ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3
बिकॉज S3 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੰਡੈਕਸ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ A3 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ S3 ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ S3 ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਰਡਰ 3 ਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਫ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਈਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਫ ਆਡ ਹੁੰਦੀਆਂ A3 ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ S3 ਦਾ ਜੇ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਦਾ 6 ਆ ਦੈਨ ਅਧੀਆ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ G ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 2 ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੈਨ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ G दैट मीन्स ये की बन जाएगी अपने को नॉर्मल सीरीज बन जाएगी हाँ जी नैक्सट एग्जाम्पल ले रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आप कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सीरीज है या सब नॉर्मल सीरीज है हाँ जी जी एग्जाम्पल लीती है आई इज सबसेट ऑफ E इज ए सबसेट ऑफ V4 इज ए सबसेट ऑफ A4 इज ए सबसेट ऑफ S4 एक्चुअली S4 की है सिमेट्रिक ग्रुप आ डिग्री 4 का ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ BSc ਚ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ E V4 A4 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ E ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is a normal subgroup of V4 because E ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ 2 V4 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋ 4 ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 2 ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬਗਰੁੱਪ सिमिलरली V4 A4 ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ 2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ A4 S4 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਸਟ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ए ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੌਰੀ ਇਹ ਆਣੀ ਹੈ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ए ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ बिकॉज ये सारे दे सारे S4 ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਐਜ਼ ਦਾ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ S4 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲ ਇਨ S4 ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ E ਲਿੱਤਾ ਇਹ S4 ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਸਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ G0 G1 Gμ ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ Gi/Gi-1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿੰਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ no proper normal subgroup that is called simple group that means ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ simple group ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ G ਨੂੰ ਆਪਾਂ simple group ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ proper normal subgroup ਨਾ ਹੋਵੇ that means ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ subgroup ਹੋਣ improper ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇ itself ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ subgroup identity ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ simple group ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੈਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ Gi/Gi-1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਸ ਕਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਔਰ ਆਲ ਸਿੰਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ हाँ जी इफ G इज ए सिंपल ग्रुप जे G सिंपल ग्रुप है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਟਸੈਲਫ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ G ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ E ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ ਸਬਸੈਟ ਆਫ G G ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ E सबसेट ऑफ G देन ਇਹਦਾ फैक्टर ग्रुप ਕੀ ਹੋਏਗਾ G ओवर आइडेंटिटी ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ G itself ਹੋ ਗਿਆ that means ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ G ਸਿੰਪਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ then identity is a subset of G this is the only composition series of G
यही जी की कंपोजिशन सीरीज़ होएगी। हुण आपां इहदी एक दो एग्जाम्पल्स करांगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी तरह जी S3 अपने को परमुटेशन ग्रुप आ, सिमेट्रिक ग्रुप आ। हाँ जी, की करांगे इहदी सिमेट्रिक ग्रुप आ, इहदी आपां ओ ले लेने आ, सीरीज़ बना लेने आ। E इज़ ए सबसेट ऑफ दिस, ये कोई आपां सब ग्रुप ले लिया इहदा, दिस सब ग्रुप इज़ ए सबसेट ऑफ S3। हाँ जी, S3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? S3 ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ H ਦਾ। S3 ਓਵਰ H ਹੋ ਗਿਆ, दिस इज सिंपल। क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਅਨਦਰ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। हाँ जी, दैट मीन्स एक ही हो जाएगी अपने को कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। इसी तरह आप जी कोई साइक्लिक ग्रुप ले लिया, जी का ऑर्डर ले लिया 6 जनरेटेड बाय ए। जे जी ए तो जनरेट होएगा तो दैन आओ दे एलीमेंट्स होंगे ए स्केयर ए क्यूब, ये आप भी ए सीच किया होया। मान लेने एक सीरीज मान लेने जी एच की ले लिया जिहदे विच ए क्यूब तो जनरेट होने वाले हैं। हाँ जी, जिहड़े ए क्यूब तो जनरेट होंगे उन्होंने आपां की लिखांगे ए क्यूब, तो दूसरा एलीमेंट की होएगा ए दी पावर 6, जी ए दी पावर 6 होएगी उन्होंने आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं। और जेड़ा बाद विच की होएगा ई, ये जिहड़ी सीरीज बन गई जी एच ई, ए की बन गई अपने को कंपोजिशन सीरीज बन गई। सिमिलरली जी एन दे विच की ले लो, वो एलीमेंट्स ले लो जिहड़े ए स्केयर तो जनरेट हो रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिफरेंट कंपोजिशन सीरीज बन गई। बिकॉज एक तो ये नॉर्मल सीरीज आ, दूसरा इन्हों के फैक्टर ग्रुप्स की है सिंपल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वाटरनियन ग्रुप लिता होया, क्वाटरनियन ग्रुप की सीरीज है अपने को। क्वाटरनियन ग्रुप आप पढ़िया होया, ये किहड़े एलीमेंट्स होंगे आ, +-1 +-i +-j +-k। हाँ जी, ये एलीमेंट्स होंगे आ, इसका मतलब इन्हों की आप सीरीज लिख सकते हैं। हाँ जी, सीरीज की लिखिया, सब तो पहला आइडेंटिटी 1 लिख लिया, 1 1 -1 कोई सब ग्रुप ले लिया, इस सैट दे विच कंटेन करता, 1 -1 ये कंटेन करता, ये जी कंटेन करता। इसी तरह आप i -i j -k लैके 3 डिफरेंट सीरीज लिखिया, ये सारिया कंपोजिशन सीरीज आ। हुण इत्थे आपां प्रूव करके दसदे हैं क्योंकि वो कंपोजिशन सीरीज आ। ईवन जिहड़ियां पिछे आपां रिजल्ट्स कीते वो भी तुसीं प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, देखो की है, एक सीरीज ले लेने कोई सीरीज मान लेने, ये पहले 1 नूं आपां G0 नाम दे दिता, दूसरे नूं आपां की कहा G1 कह दिता, तीसरे जिहड़ा सब ग्रुप उन्होंने कह दिता G2 और लास्ट से अपने को की आ गया G। फर्स्ट सीरीज इस तरह ले ली। दैन हाँ जी, पहली गल तो ये जो सीरीज लेती दैन यदा आपां नॉर्मल करना, तो दूसरी गल इनू आपां सिंपल प्रूव करना। हाँ जी, सिंपल की करांगे कि ऑर्डर जी ਇਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि जिसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर होवे वो भी ग्रुप की हुंदा सिंपल हुंदा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज सिंपल। इस सिंपल प्रूफ करने लई नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने लई तुहानू ये रिजल्ट तुसीं ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं कि उन्हां दा फैक्टर ग्रुप कढ के ਉਹਦਾ ऑर्डर फाइंड आउट कर लो। हाँ जी, फैक्टर ग्रुप पहला फैक्टर ग्रुप लिखते हैं G/G0, ਇਹਦਾ ऑर्डर फाइंड आउट करते। G का ऑर्डर कितना सी 8, G2 का ऑर्डर कितना सी 4। हाँ जी, ਇਹਦਾ फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट किया कितना आ गया 2 आ गया। जे 2 आ गया दैट मीनस ਇਹਦਾ ऑर्डर G/G2 का की हो गया प्राइम, ਇਹਦਾ मतलब ये की हो गया सिंपल बिकॉज इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। सिमिलरली G2/G1 का कटिया की आ गया 2 आ गया, G1/G0 का कटिया भी की आ गया 2। Therefore all the factor groups are of prime order, thus we have no trivial normal subgroups, hence they are simple। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जी अपने को हर एक फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम आ गया, दैट मीन्स नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ गए। जी नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ गए दैट मीन्स ये सिंपल हो गए। जे सिंपल हो गए दैट मीन्स एक ही बन गया अपने को कंपोजिशन सीरीज बन गया। इस तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं कोई भी ग्रुप लैके वो सब ग्रुप्स बना के कि वो कंपोजिशन सीरीज बना रही हैं या नहीं बना रही। हाँ जी, हुण आप इहदे रिलेटेड एक दो थ्योरम्स करांगे डिस्कस। फर्स्ट थ्योरम है एवरी फाइनाइट ग्रुप जी हैज़ ए कंपोजिशन सीरीज। कोई भी ग्रुप दिता वो कंपोजिशन सीरीज जरूर होएगी ही होएगी। हाँ जी, प्रूफ इहदा देखो
इफ जी इज सिंपल, जे जी सिंपल आ, सिंपल आप हुणी पिछे लिख के आए हैं, सिंपल का मतलब नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, दैट मीनस इट सेल्फ होएगा या आइडेंटिटी होएगा। एरा मतलब पहली सीरीज की बन गई ई इज ए सबसेट ऑफ जी, दैट मीनस इट इज ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। जे जी सिंपल है, एक कंपोजिशन सीरीज होगी। ऑल्सो इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1, जे जी का ऑर्डर 1 आ, 1 का मतलब एक ही एलीमेंट होएगा, वो केड़ा होएगा आइडेंटिटी, दैन फिर वही उपर वाली ही कंपोजिशन सीरीज होगी। इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जी इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी विदाउट फैक्टर्स। नाउ हुण आप अज्यूम कर लेने जी इज नॉट सिंपल, एक तो जी सिंपल नहीं हैगा, दूसरा इंडक्शन लगा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंगली की हुंदा वनली प्रूफ कर दो, लेस देन ऑर्डर जी लिए आप अज्यूम कर लिया, ठीक है ना, एंड द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर जी। सारे वो ग्रुप्स जिन्हों का ऑर्डर जी के ऑर्डर नालों घट आ, वो रिजल्ट की आ ट्रू आ मैथमेटिकल इंडक्शन के। हाँ जी, हुण आप इन्हूं प्रूफ कर रहे हैं कि जेडे मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंगली सैकेंड स्टैप आप प्रूफ यूज कर लिया, थर्ड स्टैप आप प्रूफ करांगे। एज जी इज नॉट सिंपल, जी नॉट सिंपल आप लेके चले आ, जे जी नॉट सिंपल आ, इहदा मतलब इहदा सिंपल का मतलब कि होंदा नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होएगा। नॉट सिंपल का मतलब इहदा कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होएगा। हाँ जी, वो आपा की ले लिया, एच नाम ले लिया। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ जी, एच जी की हो गया सब ग्रुप हो गया नॉर्मल, क्यों, बिकॉज जी इज नॉट सिंपल। देन ऑब्वियसली एच जे जी का सब ग्रुप आ, एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर नालों घट होएगा, ये आ गया अपने को। देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल हाइपोथेसिस ऑन एच, हाँ जी ऊपर आप प्रूफ करके आए हैं जिस ग्रुप के ऑर्डर नालों घट जेडे भी ग्रुप्स आ ओदे लिए रिजल्ट किया होल्ड कर रहे हैं। एच का ऑर्डर भी जी के ऑर्डर नालों घट आ, ਇਹਦਾ मतलब एक्चुअली थ्योरम की होएगी ट्रू है। थ्योरम ट्रू की आ कि ਇਹਦੀ कोई ना कोई कंपोजिशन सीरीज होएगी। देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस एच हैज़ ए कंपोजिशन सीरीज। केड़ी कंपोजिशन सीरीज अपने वालों नाम देता है एच की कंपोजिशन सीरीज नू ई सपोज करना ही करना, अपने को आइडेंटिटी तो स्टार्ट होएगी ई इज इक्वल टू एच नॉट इज ए सबसेट ऑफ एच टू इज ए सबसेट ऑफ H3, H1 H2 H3 एच एस ले लिया, एच एस कि बराबर आ गया एच दे, एक ही कंपोजिशन सीरीज होगी एच दी। हाँ जी, इनू ही सीरीज एक कंपोजिशन सीरीज है, इतने ही दोबारा करो कि एच कि कंटेन आ जी दे विच, क्योंकि बिकॉज एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दैट मीनस एच एस कि कंटेन हो गया जी दे, ਇਹਦਾ मतलब एक ही कंपोजिशन सीरीज बन गई हुण अपने को जी दी। यही आप प्रूफ करना सी कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज होएगी ही होएगी, ये आप प्रूफ कर दिता। हाँ जी, नैक्सट एक होर थ्योरम कर रहे हैं, एन अबेलियन ग्रुप जी हैज़ ए कंपोजिशन सीरीज इफ एंड ओनली इफ जी इज फाइनाइट। कि कोई अबेलियन ग्रुप है जी, ओदी जी कंपोजिशन सीरीज है देन जी फाइनाइट होएगा, जे जी फाइनाइट है तो देन ओदी कंपोजिशन सीरीज होएगी। प्रूफ देखो हुण, इफ जी इज फाइनाइट, जे जी फाइनाइट है ऑब्वियसली हुणी आप प्रूफ करके आए हैं थ्योरम 1 च, देन कोई कंपोजिशन सीरीज होएगी। ईवन जेड़ा ग्रुप फाइनाइट आ वो चाहे अबेलियन होवे चाहे नॉन अबेलियन होवे, आप सबली प्रूफ किया कि ओदी कोई कंपोजिशन सीरीज होएगी ही होएगी। हुण आप कन्वर्सली प्रूफ करना, हाँ जी इतने वही थ्योरम पिछली वाली प्रूफ करनी है, थ्योरम 1 कन्वर्सली च। मान लो जी की है अबेलियन ग्रुप आ विद कंपोजिशन सीरीज, हुण आप की प्रूफ करांगे जी नू फाइनाइट। हाँ जी, ग्रुप फाइनाइट कदों हुंदा जदों उहदे विच फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स हुंदे आ। फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट्स का मतलब उहदा ऑर्डर फाइनाइट हुंदा, इसलिए आप ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करांगे। हाँ जी, हुण की लैके चलते हैं, जी अबेलियन आ, इहदी कंपोजिशन सीरीज आ। कंपोजिशन सीरीज में आप ये नाम देता ई इज इक्वल टू जी नॉट इज ए सबसेट ऑफ G1 अप टू Gn इज इक्वल टू जी, ये मान लिया आप कंपोजिशन सीरीज है। देन द क्वेश्चन ग्रुप, जे कंपोजिशन सीरीज है देन ये जेडे सारे दे सारे क्वेश्चन ग्रुप्स होंगे वो की होंगे सिंपल होंगे। ओके, हुण जी किसी अबेलियन, जे जी अबेलियन आ ऑब्वियसली ये सब ग्रुप्स भी अबेलियन होंगे। हाँ जी, ये सब ग्रुप्स भी अबेलियन होंगे, सब ग्रुप्स का मतलब ये फैक्टर ग्रुप्स भी अबेलियन होंगे, क्वेश्चन ग्रुप्स एरा मतलब क्वेश्चन ग्रुप की आगे सिंपल भी आगे। सिंपल क्यों आया, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज है। अबेलियन भी आ गया, अबेलियन क्यों आया, क्योंकि ग्रुप अबेलियन है।
देयर देन द क्वेश्चन ग्रुप्स आर सिंपल अबेलियन ग्रुप्स फॉर ऑल आई हरेक आई देयरफॉर जे ਇਹਦੇ क्वेश्चन ग्रुप सिंपल अबेलियन आ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਅਬੇਲੀਅਨ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਇਹ ਆਪਣੀ BSc ਦੀ ਥਿਓਰਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ GI ਓਵਰ GI ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ PI ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ दैट मीन्स I ਦੀ वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं सब तो पहला I ਨੂੰ 1 पुट किया अपने को पहला सब ग्रुप की आ गया फैक्टर ग्रुप सॉरी G1 ओवर G0 ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ P1 ਆ ਗਿਆ P1 ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ दूसरा फैक्टर ग्रुप की आ गया G2 ओवर G1 ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ P2 विच इज ए प्राइम नंबर तीसरा की आ गया G3 ओवर G2 ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ P3 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾइम नंबर इसी तरह ही करते गए अपने को की आ गया GI ओवर GI माइनस 1 का ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ PI ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾइम नंबर और लास्टली आप जे इनू G लिख दिए तो नीचे ऊपर GN ले लिए नीचे GN माइनस 1 ले लिए कोई फैक्टर ग्रुप ले लिए GN किदे बराबर है G दे बराबर है दैन दिस इस फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर की हो गया PN क्योंकि जे इत्थे आप GN लीए तो दैन ऑर्डर की हो जाएगा PN और GN किदे इक्वल है G दे ही इक्वल है दैट मीनस ਇਹਦਾ ऑर्डर भी प्राइम हो गया ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ G ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਤੇ G ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਨਾ ਆਰਡਰ ਆਫ G ਓਵਰ ਆਰਡਰ ਆਫ GN माइनस 1 इज इक्वल टू PN आया ना हाँ जी GN माइनस 1 की ऑर्डर में दूसरी साइड लगे अपने को किया गया ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PN इंटू ऑर्डर ऑफ GN माइनस 1 इस तो ऊपर वाले ते देखो ऑर्डर ऑफ GN माइनस 1 का की होएगा वो होएगा PN माइनस 1 इंटू ऑर्डर ऑफ GN माइनस 2 हाँ जी फिर ऑर्डर ऑफ GN माइनस 2 का पुट कर देना ऊपर इस तो ऊपर वाली ते जाके ओदा ऑर्डर पुट करके इसी तरह ही बैक स्टैप के नाल आपां की करने ऑर्डर पुट करी जाने ਤੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ PN इंटू PN माइनस 1 अप टू PN इंटू PN माइनस 2 कर देंगे P2 P1 आया ना ਇਹਦਾ मतलब G ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ G ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ P1 P2 ਅਪ ਟੂ PN ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਆਲ PIs I is equal to 1 to n प्राइम ऑर्डर आ गया अपने को क्योंकि G का ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ये फाइनाइट ऑर्डर है क्योंकि I इज इक्वल टू 1 to n है ਇਹਦਾ मतलब G की हो गया ग्रुप हो गया ऑफ फाइनाइट ऑर्डर हाँ जी जे G ग्रुप हो गया ऑफ फाइनाइट ऑर्डर का दैन G की हो गया फाइनाइट ग्रुप हो गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਗੌਸ ਲੈਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ओके थैंक यू।